اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقوں کو ڈر پڑ گیا ہے، ان کے دلوں میں خوف آ گیا ہے۔ یہاں ذرا حذر کسے کہتے ہیں؟ خوف کو۔ میننگ لکھیں، ان تنزل، کہیں نازل نہ ہو جائے، کہیں نازل نہ ہو جائے علیہم، ان کے اوپر سورتن، کوئی ایسی سورت جو دل کے بھید نہ کھول دے ان کے۔ استغفر اللہ۔ تنبئہم، کہ خبر دے دے ان کے بھید کی، جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں نا باتیں، بما فی قلوبہم، جو ان کے اپنے دلوں میں ہیں۔ قل استہزئوا، اللہ کہہ رہا ہے اور مذاق اڑاؤ، اور مذاق اڑاؤ تبوک پہ جانے والوں کا۔ جس صورت کے نازل ہونے سے ڈرتے تھے، ہو سکتا ہے میں یہ صورت نازل نہ کرتا، اب مذاق اڑانے پہ نازل کروں گا۔ مذاق اڑانے سے ڈریے ہمیشہ، مذاق کر لیجئے ایک دوسرے کے ساتھ، مذاق اڑائیے کبھی نہ۔ مذاق اڑانے پہ پھر ایسی صورتیں نازل ہو جاتی ہیں، ایسی صورتحال بن جاتی ہے، انسان بے پردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو چھپایا ہوتا ہے نا، اس کے عیبوں کو ڈھانپا ہوتا ہے، کسی کے اوپر بات کرنے سے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراضگی آتی ہے نا، اللہ وہ ستاری کی چادر آپ کے اوپر سے اتار لیتا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی پر بہتان لگایا، اس کو موت نہیں آئے گی انلیس کہ وہ اسی جرم میں خود مبتلا ہو کے اس کا مکالا ہو کے دنیا سے نہیں جائے گا۔ بہت بڑی آیت ہے۔ یہ ہوگا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتی ہوں، کسی کے عیبوں پر نظر نہ ڈالیے۔ وہ ٹائم ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس ٹائم ہے کہ کسی کے عیب نظر آئیں۔ مجھے سائمہ کو نظر آئیں، سائمہ کو میرے نظر آئیں، پھر بھی لوگ مجھے روز کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، ایسی کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ظاہر سے دیکھ رہے ہیں۔ میری کلاس میں بیٹھ کر مجھ سے قرآن پاک سیکھ کر بھی لوگ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی آنکھیں جو دماغ کے اوپر فٹ ہے نا، جو رواج کی آنکھیں فٹ ہیں، اس معاشرے میں رواج چل رہا ہے، اسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جج کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو جج کرنے سے باز آ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا حساب ہو جائے۔ جج کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی بات کر دی ہے۔ جج مت کیجیے، ایسا نہ ہو آپ جج کر لیے جائیں، اور اگر جج کر لیے گئے تو کیا بچے گا پلے؟ پلے کچھ نہیں رہنا۔ پھر اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ معمولی سی چیز پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ کسی ٹائم نیند سے اٹھ کے بھی کوئی خیال غلط آیا تھا، کیوں آیا تھا پوچھ لے، سوال کر لے۔ آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں کہاں جائیں گی؟ ہیں؟ وہ یہی کہہ رہا ہے، یحذر المنافقون، منافقین ڈر رہے تھے نا، دلوں میں اب تک ڈر تھا، لیکن ڈر کے باوجود مذاق اڑانے سے باز نہیں آئے۔ ان تنزل علیہم، کہ نازل ہو جائے گے ان کے اوپر کوئی ایسا کلام، سورتن، ایک ایسی سورت۔ ابھی آپ نے کہا تھا، ایک کوشچن کیا تھا کہ یہ علیحدہ سورت نہیں ہے، جواب آیا، یہ سورت ہے علیحدہ، دس از ناٹ پارٹ آف انفال۔ یہ جواب ملا۔ اللہ الحمدللہ ہر دل کو جواب دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سیمی کو بھی جواب ملا۔ سورتن تنبئہم، کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو بتا دے، ان کے دلوں کے پول کھول کے رکھ دے، بما فی قلوبہم، جو انہوں نے دلوں میں چھپا رکھا ہے۔ کہتے ہیں بڑے بھاری بھاری بوجھ ہیں، بڑے کان محفوظ ہیں، دل محفوظ ہیں۔ قل استہزئوا، اللہ نے کہا اور مذاق اڑاؤ، ان سے کہو اب مذاق اڑاؤ۔ قل کہہ دیجئے، استہزا، استہزا کہتے ہیں مذاق کو، کہتے نہیں ہیں فلاں کا اسٹیرک وے میں بات کی، استہزائیہ انداز تھا، طنزیہ انداز تھا۔ ہم لوگ تو کرتے ہیں نا، جوک کریک بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو معاشرے میں نام بھی کالو رکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں بھینگا نام بھی رکھا جاتا ہے، لنگڑی بھی کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جو اللہ نے عیب دیا ہوتا لوگ اسی نام سے پکارنے لگ جاتے ہیں۔ جو ابھی تو میں جسمانی عیب پر رکی ہوئی ہوں، ابھی روحانی عیب جس کو گناہ کہتے ہیں، اس پر تو بات کرنا ہر نیک انسان اپنا فرض سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اللہ کے ہاں میرے گریڈ بڑھ جائیں گے دوسروں کے عیب پرولنے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہوگا اس کے ساتھ۔
میرا لہجہ ابھی ساتھ نہیں دے رہا جتنی سخت آیت ہے. میں کیسے بتاؤں, میں آپ کو گھول کے پلا دوں کہ دلوں سے کھیلنا بند کر دیجئے. کھیلنے کے لیے کھلونے ہیں, ڈو ہے, ڈو ملتی ہے ملتی ہے کہ نہیں آج کل. وہ ایک اور بھی آیا ہوا ہے وہ جس میں ببل کرتے ہیں, سلائم. ہائے مجھے اس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہے. بہت کچھ ہے کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور کچھ نہیں ہوتا نا یار. آپ کے ٹی وی پر ڈرامے بھی آتے ہیں, فلمیں بھی آتی ہیں, یہ گناہ کر لیجئے. لوگ کہتے ہیں آپ گناہ کے لیے پرووک کرتی ہیں. یقین کریں میں دل توڑنے سے آپ کو اس بڑے گناہ سے بچانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں میرے شہر کے لوگ کم از کم میری کلاس میں آنے والے ظاہر سے دیکھنا چھوڑ دیں, دل توڑنا چھوڑ دیں کسی کے. ڈرامہ اچھا نہیں لگ رہا نا. کوئی انگلش موویز پسند ہے کسی کو کارٹون سیریز پسند ہے, عادت بنا لیجئے, سیزن دیکھ لیجئے. نیٹ فلکس چھوڑ کے, نیٹ فلکس کے ساتھ دل ٹوٹتے ہیں. نیٹ فلکس چھوڑ کے کچھ بھی دیکھ لیجئے لیکن دل نہ توڑیے خدا کے لیے. دلوں سے کھیلنا بند کر دیجئے. کھیلنے کے لیے بہت سامان, دنیا کے کھیل تماشے. ڈرامہ کیا ہے, کھیل ہوتا ہے نا. دیکھیں قل استہزئوا, کہو اور مذاق اڑاؤ. اب ان کو دعوت دو کہ مذاق اڑائیں, ان سے کہو مذاق اڑائیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, مخرجن کا روٹ ورڈ کوئی مجھے بتائے گا؟ خارجہ, نکلنا. اللہ نکالنے لگا ہے. ما تحذرون, جس سے ڈرتے تھے نا وہ پیش آنے والا ہے. یہ دنیا میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کا مذاق اڑاؤ گے وہ کیا ہوگی, پیش آئے گی. آج صبح کی کلاس میں بھی میں نے سنایا, مجھے پیش آنے سے یاد آ گیا. کوٹ مٹھن شریف والے بابا فرید نہیں ہے جن کی پوئٹری ہے, سرائی کی پوئٹری, بابا بلے شاہ کی پنجابی پوئٹری کبھی سنی ہوگی آپ نے. ایسے ہی جو بابا فرید ہیں گن شکر, یہ پاک پتن والے نہیں, یہ جو سرائی کی پوئٹری ہے ساری کوٹ مٹھن شریف والے. اوچھ شریف, ریاست بہاول پور, احمد پور, یہ علاقہ ہے ادھر. ایک دفعہ ان کی ریاست میں, تب ساری ریاست بہاول پور کہلاتی تھا یہ علاقہ, پاکستان سے بھی بڑی اسٹیٹ تھی. تو وہاں کے جو بادشاہ کا ٹائٹل تھا نا, سر صوبہ صادق عباسی. صادق نام بھی بڑا خوبصورت چنا ہے سچے. ہر بادشاہ کا ٹائٹل صوبہ صادق 1, صوبہ صادق 2, اول دوم, یہ ہوتا تھا. تو ایک بابا فرید کا مرید کسی بادشاہ کے دربار میں, ریاست کے دربار میں ملازم تھا. اب بادشاہ کی کسی بات پر بگڑ گئی, بادشاہوں کی بگڑ بھی سکتی ہے, نوکری سے جواب دے دیا. مرید جانتا تھا کہ سر صوبہ صادق عباسی کا بھی پیر وہی ہے جو میرا ہے. سفارش کا خیال آ گیا دل میں, پیر سے جا کے شکایت لگاتا ہوں, اس نے صادق نے نکالا ہے مجھے. گئے, بابا جی روٹے پیٹتے, وہ کیا بڑی تیرے نال کتھی ہے, تواڈے صادق نے میں کو کٹ سٹا ہے دربار چو, میری نوکری کھس گئی ہے. ایک حرفی, ایک سطری خط لکھا ہے, 1 سینٹینس, جسٹ 1 سینٹینس. صادق زبر نہ تھی, زیر تھی, متا پیش آوی. بات کر دیا پوری, پڑھنے والے کو سمجھ بھی آ گئی, ہاتھ باندھ کے نوکری بحال کی ہے. پیش تو کسی کو بھی حالات آ سکتے ہیں. بادشاہ سے فقیر لوگ, اللہ ایک یہ جو 2008 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان میں, لوگ جائیدادوں کے مالک تھے, بڑے بڑے پلازوں کے مالک تھے, پلازے بنے پہاڑوں میں ہوئے تھے نا, زلزلہ آ گیا. ایک لمحہ پہلے تک بادشاہ تھے, ایک لمحہ بعد فقیر تھے. جائیدادیں مٹی میں مل گئیں, چورا چورا ہو گئیں. وہ لوگ ان کو گدھوں کی طرح پڑ گئے, مری ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کی کلائیاں کاٹ کے چوڑیاں اٹھا رہے ہیں. جس ہاتھ میں چوڑیاں تھیں وہ تو مٹی کے نیچے دب گیا. تم اپنے ہاتھ میں لے آؤ گے تو کہاں دبو گے, کہیں پاتال میں دبنے کا ارادہ ہے. پاکستانیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ابھی تک ظاہر پہ کھڑے ہیں. لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہو, لوگوں کو ان کے عیب بتاتے ہو. تیری نمازیں ٹھیک کوئی نہیں, میں تک نماز پڑھ دے ڈٹھا ہے, سجدے صحیح کوئی نہیں. تمہاری نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے, فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہے. ویسے یہ کہیں نگت ہاشمی, فرد ہاشمی کا تو تمہیں تڑکا نہیں لگ گیا, کہیں مولانا مودودی سے تو تمہیں امپریس نہیں ہو گئی. کمال نہیں ہو گئے, کمال ہو گئے. حوصلے کتنے بڑے ہو گئے ہیں لوگوں کے. اللہ کہہ رہا ہے وہ نکالنے لگا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ صرف مدینہ کے منافقوں کو نہیں کہا جا رہا, یقین کریں یہ ملتان میں بیٹھے ہوئے اسی کلاس میں ہم سب کو کہا جا رہا ہے. جو دل میں چھپاتے ہو نا غلط باتیں, وہ میں نکال کے رکھ دوں گا کسی کو جج کیا تو.
पर्दे पड़े रहेंगे, मैं सत्तारुल अयूब हूँ, सारी ज़िंदगी तुम्हें बेआबरू नहीं होने दूंगा। तुम किसी को बेआबरू न करना, किसी के बारे में दिल में भी ख्याल ना आए कि ये मुझसे कमतर है, ये हकीर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वला इन सअलतहुम, और अगर तुम उनसे सवाल करो, सअला उर्दू वाला सवाल ही है, सिर्फ वाव का फ़र्क है और हमज़ा का फ़र्क है। वाला इन सअलतहुम, और अगर तुम उनसे सवाल करो, ला यक़ूलुन्ना, अलबत्ता ज़रूर, लाम किस चीज़ का लगा यहाँ पर? ताकीद का, एम्फसाइज का। अलबत्ता ज़रूर यही कह देंगे। कौला यकूलू, यकूलूना, तकूलूना क्या मतलब होता है? से, कहना 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 कहना, मिल के 2 लोगों का कहना, 10 लोगों का कहना, पूरी नेशन का कहना। ऐसे ऐसे हर मरीज़ जिसके दिल में मर्ज़ है वो कह देगा, इन्नमा कुन्ना, बेशक हमारा मकसद इससे क्या था, नखूज़ो व नल, वो हमने बाय द वे बात की थी, हमने तो सिर्फ जोक क्रैक किया था, हम तो खेल तमाशा कर रहे थे। यकीन करो वो ये कह देंगे, अल्लाह कह रहा है कि हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, हमारे तो मुंह से बाय द वे बात निकल गई थी। इसका तर्जुमा ये है, नखूज़ो व नलाबो। कहीं भी सुना है लाइबुम व लहबुन, दुनिया की ज़िंदगी लाइबुम व लहब, ये लाइब है, नून हटा दें तो लाम आइन बे, लाइब खेल तमाशा, प्ले है। हम तो खेल तमाशा कर रहे थे, हम तो महफिल में बैठे थे एक दूसरे पर, यार मैं अपना भी तो मजाक उड़ा रहा था, तुम्हारा उड़ा दिया तो फिर क्या हो गया? कमाल है, अपना उड़ाना तो फिर भी बनता है। चलें अपना दिल दुखाएंगे, आप अपना दिल दुखा सकते हैं? आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, आप अपने दिल को कभी भी नहीं दुखाते। नखूज़ो व नलअब, हमारा मकसद सिर्फ खेल तमाशा था। अल्लाह कह रहे वाकई इनका मकसद खेल तमाशा ही था, मैं दिखाता हूँ कौन सा तमाशा है। कुल अबिल्लाही, उनसे कहो क्या इतने बड़े हौसले रखते हो? क्वेश्चन करो उनसे, क्या अल्लाह और उसकी व आयात ही, और उसकी आयतें, अल्लाह इसका मतलब है यहाँ पर रुक गया है, आयात और चीज़ है, अल्लाह और चीज़ है। अल्लाह क्या है? अल्लाह की मखलूक में है। सुनाई नहीं मैंने आप लोगों को हदीस मुबारक कि मैं आया था मेरे बंदे में भूखा था, मैं आया था मेरे बंदे मेरे पास जूती नहीं थी। अल्लाह कह रहा है क्या मैं, अल्लाह अपनी मखलूक की जगह पर ख़ुद वकील बन के खड़ा हो गया है, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, पेशी भोग सकते हैं इस मुकदमे की? अल्लाह करे हमारे ऊपर ये मुकदमे कभी ना बने। कुल अबिल्लाही, क्या अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओगे? व आयात ही, और उसकी आयात के ख़िलाफ़, व रसूल ही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनके इखलाक के ख़िलाफ़, उनकी शरीयत के ख़िलाफ़, उनकी शरीयत के ख़िलाफ़ खड़े होकर कहोगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम इंदी भानी मर्दी। आप किसी औरत को नहीं कह रहे, किसी बूढ़ी को नहीं कह रहे, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाती हमला कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो ये हमला, तो फिर माफ़ी मांगिए अल्लाह से, हो सकता है आपको माफ़ी मिल जाए। अब्दुल्ला बिन उबई को माफ़ी नहीं मिली थी। बात जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाती है, यकीन करें अब्दुल्ला बिन उबई ने बड़ी माफ़िया मांगी थी अम्मा आयशा को रॉन्गली एक्यूज़ करके, फिर माफ़ी मिलती नहीं है। अल्लाह करे कि हम कभी हमसे शरीयत का मजाक ना उड़ाया जाए। अल्लाह हमारी ज़बानों को उससे पहले जला दे, फालिज गिर जाए हमारी ज़बानों पर कि हम कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ाएं किसी इंसान को टारगेट करके। कुन तुम तस्ताज़िऊन, ये मिले थे तुम्हें मजाक बनाने के लिए, अल्लाह, उसकी आयात, उसके रसूल। अल्लाह की आयात को अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ ना आज, और मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी अपनी ज़ात में आयात है, मेरी निशानियाँ हैं, कहा है। इंसान के अपने अंदर है निशानियाँ अल्लाह की। आप अल्लाह की निशानी का मजाक उड़ा रहे हो तब भी इंसान का उड़ा रहे हो, आप अल्लाह का उड़ा रहे हो तब भी इंसान का उड़ा रहे हो, आप अल्लाह के रसूल का उड़ा रहे हो तब भी किसी इंसान का उड़ा रहे हो। बहुत एहतियात की ज़रूरत है इस ज़बान को इस्तेमाल करते हुए। इसको अच्छे जायके खिलाने के लिए बेशक आप साग पकाएं, सुहाने पकाएं, आप सूप बनाएं, आप नगेट्स बनाएं, लेकिन इस ज़बान को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें अल्लाह के वास्ते।
कुंतुम तस्ताज़िऊन, ये मिले थे तुम्हें मजाक करने की जगह, ये तुम्हारे ज़बान के जायके थे जिनको तुमने चेंज किया। टंग, क्या टेस्ट ऑफ टंग, यही कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ टंग चेंज किया है। कोई बात नहीं, महफिल में थी, टेस्ट ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग हो गई। जान खाने को आ जाते हैं मौलवी हमारी, हमसे कहते हैं कि टेस्ट ऑफ टंग, हम भी ना, ये भी ना करें। मौलवी तो नहीं खाते, मौलवी तो उल्टा आपके साथ मिल के टेस्ट ऑफ टंग के हिस्सा बनते हैं। जो आपको टेस्ट ऑफ टंग से मना कर रहा होता है वो मौलवी तो हो ही नहीं सकता, वो कोई अल्लाह वाला होगा, आपका सच्चा खैर खा होगा, किसी बुरे अंजाम से आपको बचाना चाहता होगा। ला ताज़िरू, अब माजरत नहीं, अल्लाह ख़ुद कह रहा है माफ़ी की गुंजाइश ही ख़त्म, तौबा के दरवाजे बंद, नो एक्सक्यूज़। अब ना कहो एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। ला ताज़िरू, ताज़िरू उज़र, आइन ज़े रे, उज़र, उज़र से क्या होती है? माजरत। हम माजरत ख़्वाह हैं, आपका मिलाया हुआ नंबर किसी और लाइन पे मसरूफ़ है। ये वही माजरत है उर्दू वाली, इसको लिखें, अंडरलाइन करें, सिमिलरिटीज़ में है। अब माजरत मत कीजिए, आपका नंबर चाहे किसी भी लाइन पे मसरूफ़ है, अल्लाह ने पकड़ लिया है किस लाइन पे है। क़द कफ़रतुम, तुमने कुफ़र किया, किसी का दिल दुखाया, कुफ़र किया, किसी के ऊपर ज़बान दराजी की, कुफ़र किया, किसी के ऊपर ग़ीबत की, कुफ़र किया, बोतान लगाया, कुफ़र किया। मैं नहीं कह रही, अल्लाह का कुरान कह रहा है। क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद, पैदाइशी मुसलमान होने के बाद। कलमे पढ़े थे, इस बात के कलमे पढ़े थे, लोगों के दिल चीर के रख दोगे। कद कफ़रतुम, तुमने कुफ़र किया, बादा ईमानिकुम, बड़ी खौफनाक बात कर दी है, बादा ईमानिकुम। सारी ज़िंदगी ईमान मांगते रहते हैं, हर नमाज में, हर रकत में मांगते हैं। कोई और कुरान की आयत तिलावत करें ना करें, फ़र्ज़ों के आखिर में भी हम अलहम शरीफ पढ़ रहे होते हैं कि नहीं पढ़ रहे होते। ईमान ऐसी दौलत है, इतनी कीमती चीज़ को तुमने गंवा दिया सिर्फ मजाक मजाक में। दिल की लगी, दिल को लगी, दिल की लगी क्या बन गई? दिल की लगी ही बन गई। फिर दिल लगी कर छोड़ी, तुमने कहा कि छोटी देर के लिए दिल को खुश किया मैंने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन्नाफ हो, अगर हम अफ किसे कहते हैं? अफ माफ़ करना। अल्लाह मैनी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़त फ़िद दुनिया वल आखिरा, आमीन। अगर हमने माफ़ कर भी दिया अन ताइफ़तिम मिनकुम, किसी एक गिरोह को, उसका कसूर क्या था? वो जो जिन गिरोहों को माफ़िया मिलती है ना, वो कौन से होते हैं? आप एक गॉसिप कर रही हैं, आप लगाई बुझाई कर रही हैं, वो कान दे के सुनते रहे, वो सुनने की माफ़ी चाहते हैं। अब उनको समझ लग गई तो इंसान ने माफ़ी चाहिए, माफ़ी उसे मिलेगी, कहने वाले को नहीं मिलती। हमने अगर किसी गिरोह को माफ़ कर भी दिया, मिनकुम, तुम में से, नुअज़्ज़िब, हम अज़ाब ज़रूर देंगे। ताइफ़तुम बेअन्नहुम, किसी एक गिरोह को तो अज़ाब ज़रूर देंगे, अल्लाह हमें अज़ाब वाले में शामिल न करे। बेअन्नहुम, और अज़ाब देंगे किसको? अल्लाह रीज़न बता रहा है। कानू मुजरिमीन, उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने दिल तोड़ने के जुर्म किए हैं, उन्होंने पर्दादारियाँ ख़त्म की हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि एक डाकू आके आपके घर के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। मैं घर बैठे बैठे किसी के घर का कर सकती हूँ। मेरे फ़ोन के अंदर इतनी एक्सेस है, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं यहीं बैठे बैठे ख़ानदान की किसी, उसकी नंद को, उसकी सास को, उसके बारे में कुछ भी कह सकती हूँ। कह सकती हूँ या नहीं? मैंने चादर और चार दीवारी उस औरत से खींची कि ना खींची? यहाँ शौक़ होता है लोगों को पिछले बातें बताने का, बहुत से ऐसे देखे हैं, ख़ास तौर पे रिश्ते करने के टाइम। भेण तुहाडी नस्ल दा सवाल है, तुहाडी नस्ल दा सवाल है, फलानी तो कंजरियां को पिछू सटेंदी है। मैं जाननी आउंदे, मेरे बच्चे आउंदे कट्ठे कॉलेज पढ़ते रहन, मैं गवाह हाँ। वो खुदा से डरते भी नहीं हैं कि गवाही किस चीज़ की दे रहे हैं। अल्लाह यकीन करें, अल्लाह फिर उनकी बच्चियों के किस्से भी ऐसे ही सुनवाता है दूसरों को। उनको अंधेरे में, हाँ, बड़े बड़े शदीद अंधेरे में बेचारे ठोकरें खाते। हम इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, उनको भी अंधेरे में कोई नहीं रखता। फिर मेरा अल्लाह कह रहा है मैं नहीं रखूंगा अंधेरे में। आज मैं पहली बार आई और ठिकाने पे था ही कौन, मैंने कहा पता नहीं कितना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम।
पहली बार आई तो आपके घर तो कोई बंदा ही कोई था, वो कह रहे थे हम लोग थोड़े बदतमीज़ लोग हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कहीं कहकर दिखाते सजी हैं, मारते खब्बी हैं, और क्लासरूम में बोलने भी नहीं देते जो आ जाए एक दफ़ा। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, फिर बात करते हैं। हाँ, औज़ुबिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह कह रहा है एक गिरोह को माफ़ी मिल भी गई तो एक तो पकड़ में आएगा ही आएगा अजाब में। मजाक समझा हुआ है, किसी की इस्मत उछाल देना, किसी की चादर तार तार कर देना, बातों ही बातों में किसी को किसी की नज़रों से गिरा देना। हम ज़रूर अजाब देंगे। अल्लाहुम्मा ला ताजलना मिनहुम, बसबब इसके कि उन्होंने जुर्म किया, वो मुजरिम हैं। वो बार बार सूफ़ी शायरों ने कहा है मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा है। डिस्ट्रक्शन का इतना ही शौक़ है, एटम बम बना दो, हिरोशिमा पे मार दो, नागासाकी पे मार दो, दिलों पे ना मारना। दिलों की बिल्डिंग गिर गई, तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे समझना तुम्हारी अपनी छत गिर गई, ऐसे समझना तुम्हारी अपनी दीवारों से तुम बेपर्दा हो गए हो। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातो, अल्लाह हमें इनमें शामिल न कर। अब नफ़क़ा का मतलब क्या फिर बताऊँ या याद है? नफ़क़ से ही इन्फ़ाक़ है और नफ़क़ से ही मुनाफ़क़त है। रूट वर्ड क्या है? एक ही है, अल मुनाफिकून, मुनाफिक मर्द। अल्लाह सिर्फ मुनाफिक कह देता बात ख़त्म हो जाती। वल मुनाफिका, तो मुनाफिक औरतें। अल्लाह को पता है घरों में बैठी औरतें मुनाफिकत के खेल रचा रही हैं, किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, घर बैठी रिश्तों के जोड़ तोड़ करा रही हैं। बाज़ुहुम मिन बाज़, ये सब एक दूसरे के जैसे होते हैं, इनकी फितरतें मिलती हैं, इनके शौक़ मिलते हैं, इनको दिलों से खेलने का शौक़ होता है। इनको खेलने के लिए कोई डो नहीं मिलती, ना वो नहीं मिलती, स्लाइम भी नहीं मिलती। या मरून बिल मुनकरे, ये बुरी बातों का एक दूसरे को प्रवोक करते हैं, बताते हैं भेड़ मैं तो चंगा कीता हम, मैं तो भला चाया हम, रिश्ते दा टाइम आई मैं हाली भी ना बोला हाँ हैं फलानी ता ओता उनकी धी उथा थई आई कोठे ते। ये मैं कोई यहाँ पाकिस्तान की बात बता रही हूँ। शादी हो जाती है फिर भी इनकी जिंदगी बर्बाद करने से पास नहीं आती। इंदे प्यो ने निकाह ही कोई ना कीता, इंदी मां नाल, इंदी मां नाल निकाह ही नहीं थी होया, तू इत्था रिश्ता करे नहीं पई है, तेरी नस्ल चलनी इंदे चो, नस्ल रोल वैसी। मैं तेरी खैर खा, मैं तेरे को दसें दी पई। अल्लाह ने कहा इनकी आदतें मिलती हैं, एक दूसरे को बताते हैं, बुरी बातें बताते हैं, फैलाते हैं। वयनहौना, और मना करने के लिए उन्हें और कुछ नहीं मिलता, अनिल मारूफ, मगर अच्छी बातों से, उर्फ से मना करते हैं। कोई इंसान हौसला कर भी रहा होता है ना, वो ये नहीं देखता, कोई किसी के अंदर इतना हौसला आ भी जाता है कि बेवा है या मुतलका है, या पहले किस माशरा कंजरी कह रहा है मेरे बेटे की बहू बने, वो मेरे बेटे को पसंद है तो सर आँखों पे, कोई ऐसा कर भी रहा होता है तो फिर क्या करते हैं, उसके लिए रोड़े अटकाते हैं। इसको कहा है बात नहीं बन रही, अब इसके घर के मर्दों को बताऊंगी, हो सकता है किसी की गैरत जागे। होता है कि ऐसा नहीं है, मैं किसी आउट ऑफ द वे बात कर रही हूँ, मैं इसी प्लेनेट की बात कर रही हूँ, अर्थ की। इसी प्लेनेट में जो दो मुल्क हैं बरसगीर पाक व हिंद में, इंडिया और पाकिस्तान, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में जो शहर है मुल्तान, मैं उसी की बात कर रही हूँ। रिश्ते करते हुए कहा जाता है, बच्चों को पहले कहा जाता है पढ़ने जा रहे हो, इदारों में जॉब करने जा रहे हो, दोस्तियाँ लगा लो, कोई बात नहीं। दोस्तियाँ लगाने से मुराद ये होता है दूसरों की इज़्ज़तें उतार लो ना, नो डाउट, नो वरीज, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। मेरी भांजी भतीजी मेरी बहन का दिल दुख जाएगा, उसकी बेटी से शादी न करवाई तो मैंने तुम्हारी, मैंने बेटे के लिए बहू ढूंढनी है। अभी तक पाकिस्तान और मुल्तान की औरतें कहती हैं हमारे बेटे के लिए ना डॉक्टर लड़की होनी चाहिए, आपकी नज़र में कोई हो तो ज़रा बताइएगा। मैंने बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है, न मुझे उस बेवा मुतलका कोई माशरे में नज़र आ रही है, ना कोई बच्चों वाली नज़र आ रही है जिसको शेल्टर चाहिए। कवारी में से गोरे नायाब ढूंढते हैं। इसीलिए तो फिर माथे में क्या बनते हैं, पत्थर पड़ते हैं माथों पे, अकलों पे पत्थर पड़ते हैं ना, तो माथे भी फिर काले हो जाते हैं। फिर वही बहू रत के हंजू रोआ रही होती हैं। कब निकलेंगे आप लोग, कब निकलेंगे बेवा और मुतलका के रिश्ता ढूंढने अपने कवारे बच्चों के लिए?
सूरत तौबा के नाजिल होने के बाद भी किसी चीज़ का इंतज़ार है। मेरी बातें हो सकता है आज आपको अजीब लग रही हों, लेकिन इस्लाम के बारे में कहा गया है, हदीस मुबारक है, जैसे आया है अजनबी है, अभी अरबों को लग रहा है कि बेटियों को ओए ज़िंदा दफन न करें। ये कैसा दीन है? ओए बेटियों को हकूक़ दे दें बराबर के, बीवियों को हकूक़ दे दें कि हम भी देर से घर आएँ तो वो पूछें कि था क्यों सही देर क्यों थी। ये सिर्फ औरत से नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ने कहा इंसानी सतह पर दोनों इक्वल हैं। अरबों को लगा बड़ी अजीब बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद कर गए, सहाबा बन गए। हमें अजीब बातें लग रही हैं, मेरी बातें हो सकता है आपको अजीब लगें। अगर अजीब भी लगती हैं तो मुबारक हो के निस्बत वहाँ से है। आज अल्लाह आपको मौका दे रहा है, ये अजीब काम कर जाइए, आप सूरत वाक़या के साबिकून में शामिल हो जाएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। अल्लाह हमें शामिल करे। जहाँ बच्चे चाहते हैं, अरब के बच्चे जो थे ना, अरब के शहज़ादे इमाम हसन हुसैन जैसे भी, वहाँ के सहाबा को पता था कि मर्द के ज़िम्मे है निकाह का इख्तियार। मर्द पसंद करेगा, जिस घर में चाहेंगे वालिदैन को रिश्ता देने जाना होगा। हमें नहीं पता हमारी माओं के हकूक़ इतने बड़े हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जहर खा के मर वैसा, खीर माफ़ कोई ना करे सा, बत्ती धारा ना बख्शे सा, तैं उठा शादी की थी था, वो तुम्हारा इख्तियार है। अल्लाह कहता है कि परिंदे का इख्तियार, बच्चा जब घोंसले से उड़ गया तो उड़ गया, अब उसने उड़ना सीख लिया, उसे उड़ने दो। क्या पर उसको जंजीरें डाल के रखा हुआ है तुमने घरों में? मर्द को मर्द तो बनने दो। अल्लाह ने पीछे कहा नहीं इसी सूरत में, पीछे औरतों की तरह बैठे हैं घरों में। ये सूरत मुनाफ़क़त से डील करती है, ये सूरत बकरा जैसी है। सूरत बकरा भी किसी दिल की मैटर से डील करती है। अत्तक़वा होना, सूरत बकरा भी इस ऐसे ही मुनाफ़क़त से भी डील करती है। यहाँ तकवा आ गया तो दिल पाक हो गया। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, वो कायदा, वो असूल अप्लाई हो गया। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने कहा अक्ल पे पर्दे नहीं, दिल पे कुफल। कुफल तो मतलब समझते हैं, बड़े बड़े मोटे ताले, चाइना दे ताले बड़ावन को पहले वाले ताले, मोटे मजबूत ताले मार के बैठे हुए, तजोरी समझा हुए दिल को। ये सूरत भी दिलों की बात करती है, दिलों के पोल खोल के रख रही है। आज भी अगर अमल में चेंज नहीं आती सूरत तौबा सुनने के बाद, फिर अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातो बाज़ुहुम मिन बाज़, फिर यहाँ ढूंढिए इस आयत में अपना मकाम कहीं ढूंढे। वयनहौना अनिल मारूफ़, अच्छी बातों से एक दूसरे को रोकते हैं। कोई हौसला भी करे ना माशरे में इनिशिएटिव लेने का। नहीं, प्रियंका और निक जोन्स तो कर सकते हैं आपस में शादी। जानते हैं प्रियंका और निक जोन्स को कितना एज डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स का। एक हिंदू और एक, दोनों गैर मुस्लिम है। एक पीक का मुशरिक है, एक पीक का काफिर है, लेकिन काम कौन सा कर गए हैं? जो अम्मा खदीजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हैं? तौफीक नहीं मिलती तो पाकिस्तान में, मुल्तान में रहने वाले लोगों को नहीं मिलती। नहीं मिलती तो फिर मान लीजिए, कह दीजिए ताले बड़े हैं, ताले खड़खड़ा के दिखाइए अपने सीने पे हाथ मार के। फिर देखे ना, बुराई भी करे तो बंदा शैतान की तरह चैलेंज करके तो करे, मुनाफकत ना करे। डट गया था ना, नाफरमानी की थी ना, चैलेंज करके कहा था करूँगा, ये करूँगा, हर रास्ते पे बैठूँगा। आप तो शैतान से भी गए गुजरे हैं, इसलिए तो हाविया मकाम है। मुनाफकत का मकाम हाविया है, जहन्नम का सबसे आखिरी दर्जा। चलो ऊपर से निकलना शुरू होंगे भी सही लोग, हम मान लेते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुनहगार निकलना शुरू होंगे भी सही, दरमियान से 6 कैसे फलांगोगे अगर मुनाफकत के अंदर चले गए हो तो, हाविया में पहुंच गए हो तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको हाविया से बचाए। वयकबिज़ूना अयदीहिम, हाथों को कब्जे में रखते हैं। मता हाथ कोई अच्छा काम कर वंजन, कोई नेचुरली मेरे अंदर कोई अच्छाई पैदा हो जाए। ह्यूमन नेचर है ना, आपके सामने एक्सीडेंट हो रहा हो, दिल चाहता है ना उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन हाथ स्पेशली रोकते हैं। मत आसाए कर वञो,
अगर किसी के अंदर ये सिफ्त है तो समझे वो कहाँ है, वल मुनाफिकातो। अल्लाह पे यकीन नहीं होता ना, इस वजह से ना हाथ लोग पूरा को देते हाँ हाँ, थानेदार सारे ते मुकदमा पहले दर्ज करे सी। ओ हॉस्पिटल जड़े घेने में सो पहले अक्सर क्या है, एक्सीडेंट का केस नहीं, मर्डर केस है। जिंदगी इतनी प्यारी है, जिंदगी कितनी प्यारी है आपको, अपनी जिंदगी, दूसरे की तो नहीं प्यारी, वो तो ख़त्म। जिंदगी प्यारी है, पहले होती थी दूसरों की ज़िंदगी प्यारी, अब होती है सिर्फ अपनी ज़िंदगी प्यारी। अब कोविड के टीके भी लगवाएंगे, हाँ कहीं मर ना जाए। अच्छा इससे ना मरे तो फिर क्या कभी नहीं मरेंगे? कोई गारंटी तो ला दे मुझे। अल्लाह हम सबको आब कौसर पिलवाए और मुझे ख़ास तौर पे जामे शहादत भी पिलवाए। आमीन तो कहिए। मैंने किसी और के लिए तो नहीं मांगी, अपने लिए मांगी है। अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, आमीन। वयकबिज़ून अयदीहिम, उनकी सिफ्त क्या होती है आप उनको पहचान सकते हो, माथे पे नहीं लिखा होगा, लेकिन अच्छे काम से खुद भी रुकेंगे, दूसरों को भी रोकेंगे। नसुल्लाह, उन्होंने भूल गए अल्लाह को, भुला दिया। नसी, नसी किस चीज़ का रूट वर्ड है? नून से, ये इसी से हम बने हैं, इंसान। इंसान कुरान का चैप्टर के चैप्टर किसके ऊपर है? हम सब के ऊपर है ना, इंसान के ऊपर। भूल जाना, नस्सू, नून सीन या, ये इसका रूट वर्ड है, नून सीन या, नसी, भूल जाना। नसी रस्म भी तो होती है ना, वो महीनों की तादाद भूल जाना। इस देखिए नसी का रूट वर्ड आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान से, ये इंसान का रूट वर्ड है। इंसान है भी वही जो भूल जाए। आपको कुरान सुनाया भी इसीलिए जाता है जो भूले हुए सबक याद आ जाएं। हो सकता है आप में से हर एक के साथ, मेरे साथ, हम सब ये सब कुछ कर चुके हों, लेकिन हम अब याद आ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। नसुल्लाह, ये अल्लाह को भूल गए। अल्लाह भूलने की चीज़ थी हैं? भला भूले भी तो किसको भूले यार, खुद को भूल जाओ। होश बेहोश हो नहीं है तो भूल जाओ कौन हो, कहाँ से आए हो, अल्लाह को तो ना भूलो। नसुल्लाह फ़नसियहुम, सो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह बड़ा मुंतकिम मिजाज है, अल्लाह भी भूल गया। अल्लाह ना करे अल्लाह हमें भूले। वो शेर है ना, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम अपनी अदा के बंदे, तुम अपनी अदा के बंदे। न तुम अपनी अदा भूलोगे, पता नहीं ना हम अपनी, मुझे शेर ही भूल गए। आयत ऐसी आई है मेरे तो होश उड़ गए हैं, यकीन करें। फ़नसियहुम, तो अल्लाह उनको भूल गया। अब वजीफ़े पूछते फिरते हो, घर में सारे माली परेशानी आ गई है, बेटे दी नौकरी छुट गई है, खावंद कारोबार च घाटा आ गया है, बालां दे रिश्ते नहीं थींदे। बीबी जी कोई वजीफ़ा दस रहे हो, मौलवी साहब कोई वजीफ़ा दस रहे हो, पढ़ो जितने वजीफ़े पढ़ो, अल्लाह को याद नहीं आओगे। अल्लाह के कागज़ों तक तुम्हारी फ़ाइलें पहुँचेंगी नहीं। जब फ़ाइल नहीं पहुँचेगी, साइन नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? जब अल्लाह कह रहा है, खुद कह रहा है मैं दाखिल दफ्तर कर दूंगा, मुझे भूल गया वो, मैंने वो मुकदमे ख़त्म, चैप्टर क्लोज। देखें चैप्टर तो तब तक चलते रहते हैं जब तक अगले को आप याद होते हैं। अगर आप किसी की यादाश्त से निकल गए, आप किसी के दिल से निकल गए, तो फिर आप किसी को क्या याद रहे? उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में चाहे आपका नाम हो पड़ा। आजकल कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है हमारे फ़ोनों में, मोबाइलों में है। उसमें कितने लोग हैं जो आपको याद नहीं है और कितने लोग हैं जिनको आप याद नहीं हैं। होते हैं ऐसे, नहीं होते? आखिर में कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे लोग होते हैं जिनको 2-3 साल हो गए आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपसे नहीं किया। अल्लाह कह रहे मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया, आप अर्जियाँ लगाते रहो, रोज़ दरख्वास्तें भेजो, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट से मैंने डिलीट मार दिया है। चलो नाम कभी नज़र आता है तो याद भी आ जाता है बंदा। नसी का मतलब है भूल जाना। हज़रत मरियम ने कहा था नसियम मनसिया, सूरत मरियम में, मरियम जो तुझ पर आज गुजर रही है, काश इससे पहले तू भूली बसरी याद भी ना होती, किसी के जहनों में भी ना रह जाती। काश इससे पहले ये हो जाता। पता नहीं था कि कोई कितनी बड़ी नेमत दे दी अल्लाह ने। ईसा इंसान पर जब गुजरती है ना, उसका दिल चाहता है कि वो काश वो पैदा ही ना हुआ होता, काश वो पैदा होते ही मर जाता। अच्छा अभी ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अल्लाह कहता है मुझे ऐसे भूल गए हो तुम, तो मैं भी ऐसे ही भूल गया हूँ तुम्हें।
اب مجھے یاد ہی نہیں ہے، میرے کانٹیکٹ لسٹ میں کبھی تمہارا نام بھی تھا، کبھی نمازیں پڑھی تھی. اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہم کبھی نہ بھولیں اللہ کو. ان المنافقین، بات بھولنے کی ہو رہی تھی، پھر تذکرہ منافقین کا آ گیا. ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، یہی فاسق ہیں. منافق ظالم ہیں، یہی پیچھے اللہ نے کہا کافر ہیں. ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے کفر دیکھنا ہو، بدقسمت ترین انسان دیکھنا ہو، قیامت کے دن اللہ کہے گا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں تمہیں بتاؤں. پہلے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ مفلس کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا، صحابہ بھی سیکھ رہے تھے نا کہ دل کی آنکھوں سے کیسے سیکھیں. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. ہمارے سر آنکھوں پہ. آجتا وہ کیا ہوتا ہے، سجن آمین اکھی ٹھرن. آپ نے ہماری محفل کو 4 چاند لگائے، شرف بخشا. اچھا، اللہ منافقت کی بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ہم کہاں پہ تھے؟ ان المنافقین هم الفاسقون. ہاں، میں آپ کو حدیث مبارک سنا رہی تھی. کہا حدیث مبارک میں صحابہ سے پوچھا، ایسے جیسے آپ اور میں بیٹھے تھے، گفتگو کرتے کرتے پوچھا، یار پتہ ہے غریب کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ ابھی سیکھ رہے تھے دل کی آنکھوں سے دیکھنا. انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ دماغ کی آنکھوں سے اب نہیں دیکھنا. جو ہمارا ٹیچر ہے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، لیسن کون سا پڑھانا چاہ رہا ہے. صحابہ نے کہا، جی جناب، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کم ہو، سواریاں کم ہو، مال اولاد کم ہو، دنیا کے رزق تام جھام کم ہو، گھر میں پکوان کم پک رہے ہوں، محفلیں کم سج رہی ہوں دوستوں کی. اچھا، یہ تو تم سمجھتے ہو. ذرا میں بتاؤں مفلس کون ہے؟ یہ میں تمہیں آج کیٹیگرائز کر کے بتا دوں. کچھ سٹینڈرڈز اللہ کے بھی ہیں، کچھ سٹینڈرڈز تم انسانوں کے بھی ہیں. میری امت کا مفلس ہوگا، قیامت کے دن آئے گا. انبار ہیں نیکیوں کے، انبار ہیں. کہتے ہیں پہاڑوں سے اونچی نیکیاں ہیں. کوئی ایک نیکی، پہاڑ ایسے تھوڑی بنتے ہیں. ایک ایک اگر آپ پتھر کو جمع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، تب جا کے آسمان جتنے ایورسٹ بنتے ہیں. ایورسٹ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. کیا حج ہوں گے، کیا عمرے ہوں گے، کیا زکاتیں ہوں گی، کیا ہوں گی، نمازیں ہوں گی، تہجدیں ہوں گی، درس قرآن اٹینڈ کیے ہوئے ہوں گے. بڑے فخر کے ساتھ پہاڑ دکھائے جائیں گے، بڑے فخر کے ساتھ پہاڑ دکھائے جا رہے ہوں گے. اچانک سے کوئی اٹھے گا جس کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جو پیچھے اللہ نے کہا ہے مذاق اڑاتے ہو. مذاق اڑاتے ہو تو پھر مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی مخلوق ملی تھی. کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، وہ کہیں گے حضور جنت میں تو بھیج رہے ہیں، اس نے تو میرا دل دکھایا تھا، اس نے تو میری پردہ دری کی تھی، اس نے تو کسی کے سامنے میرے بارے میں اتنا کچھ کہا تھا کہ میں اس کی نظروں سے ہی گر گئی تھی. ذرا وہ تو مجھے لے دیں. اللہ کہے گا چلیں جی، پہاڑ میں سے کدال لگائیں، ڈگنگ شروع، کھٹ دے آؤ، ان تے سٹیں دے آؤ. پھر ایک اور آ جائے گا. میں اس کے گھر میں ڈرائیور تھا، میں اس کے گھر میں ملازمہ تھی. اوئے کے سوا کبھی بولی نہیں، اوئے کے سوا کبھی بولا نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق مجھے ٹریٹ کیا، اپنی اوقات کے مطابق ٹریٹ نہ کیا. اوقات تو سیم ہے، وہ بھی گندے وہ ایک چھوٹے سے قطرے سے، ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان ہے. مالی بھی میرے گھر کا، میں بھی اسی سے بنی ہوں. اوقات میں کوئی ڈفرینس ہے؟ کوئی میری قبر میں خاص اے سی لگتے ہیں جہاں پر جو غریب لوگوں کی قبروں میں نہیں لگیں گے. جب بھی بولا میرا دل دکھایا، جب بھی بولی میرا دل دکھایا. حالی تک کم نہیں کیتا، حالی تک یہ سب کو جی میں پیا تھیا. میں اپنے گھر دے اور نوکراں دی جی میں ٹریننگ کرے نہیں ہوں، میں کوئی نہیں کر سکتا. آپ انسانوں کو ٹیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے دل کرش کر کے. آسان سودے سمجھ لیں آپ نے آخرت کے، اخلاق کو معمولی چیز سمجھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ ملازم آئے گا، وہ نیکیوں کے پہاڑوں میں سے حصہ لے گا. ہم تو 2-4 جوڑے کپڑوں کے دے کے دوسروں کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ملک خرید لیتے ہیں، اس کے گھر کے فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوں گے.
तुसा यतीम थे वैसा तुहाडा बड़ा ख्याल रखा आई जेड़े वेले तक तुहाडे सारियां ने कड्ढ सट्टा आई असा हाँ न लाया आई अज तुहाडे धियां दे रिश्तियां दा टाइम आया अस पुछदे ही कोई नहीं वे कल्ली जाते बह के अस उन्हां को आदे नमक हराम है कहते हैं कि नहीं कहते कैसे कहते हैं अल्लाह ने ये ज़बानें तो हमें दिए हैं इतने हौसले तो दिए हैं कहा था किसी यतीम बच्ची के ऊपर रोब रखा था ज़बानें मारी थी उसका दिल दुखाया था निकालो नेकियों के पहाड़ों में से ख़त्म हो गए हजूर नेकियों का पहाड़ मुक गया हुण क्या करूं अच्छा इसने गुनाह तो किए होंगे ना इस बंदे ने जो दावा कर रहा है इसके गुनाह तो होंगे इसके गुनाह इस पर डालना शुरू कर दो इसको एक और पहाड़ ये नेकियों का पहाड़ लेके आया था इसको अभी एक और पहाड़ खड़ा करके दिखाते हैं मुद्दई के पास क्या है मुद्दई ने झूठ बोले हैं मुद्दई ने धोखे दिए हैं मुद्दई ने बदतमीजियां की हैं लेकिन जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है अब वकील का क्या काम है मुद्दई को इंसाफ दिलाना ना अल्लाह ने बहुत दफ़ा कुरान में बताया था मैं वकील हूँ हमें एतबार नहीं आया था अब वकील कर रहा है वो काम जो उसने करना था चलो जी मुद्दई के जितने गुनाह हैं उसने ज़िंदगी में जितनी बेपर्दियाँ की हैं पैंट शर्ट्स पहनी हैं उसने नाच गाने किए हैं ये इस नेक हाजी नमाजी बीवी पर डालो ज़रा सारे उसके गुनाह इस पर डालो क्योंकि उसने क्या किया था जो बात मैंने पहले आपको समझाई मस्जिद ढा दे बंदर ढा दे जो कुछ ढहना है पर बंदे आंदा दिल न ढावें के रब दिलां च रहंदा है जजमेंटल होते हो बड़ा शौक है जज खेलने का आज देखो अदालत लगी हुई है असली अदालत ये है तुमने दिलों में अदालतें लगाई हुई थी जाहिर को देखा था फलां कपड़े कैसे पहनती है फलां पार्टी में नाचती कैसे है फलां का बच्चा जी ड्रग एडिक्ट है हम आपको बचा रहे थे आप कहीं वहाँ रिश्ता करके फंस ना जाएं ठीक है बचा लिया था ना अब ये एंजॉय करो ये भी पार्टी है ये भी हिस्सा है डालो इसके ज़िम्मे सबके गुनाह डालो जो भी मुद्दई हैं इसके गुनाहों का पहाड़ ऐसा खड़ा होगा कि मुंह के बल घसीट के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा जहन्नम में जाने से पहले ह्यूमिलिएशन का अजाब उसे भुगतना होगा उसे बेइज्जती का हिसाब भुगतना होगा जो किसी की बेइज्जतियाँ की थी जो किसी के मजाक उड़ाए थे मैंने कहा है ना कि दिलों से न खेलिए अल्लाह के वास्ते डो है स्लाइम है कुछ भी है खेलने के लिए चीज़ें कम है क्या और कुछ नहीं खेलने को मिल गया अब ड्रामे देखिए मूवीज़ देख लीजिए मैं गुनाह पे प्रवोक नहीं कर रही लेकिन मैं आपको बड़े नुकसान से बचाना चाह रही हूँ दिलों से मत खेलिए दिलों से खेल लिया तो पल्ले कुछ नहीं रहना भरे हुए अकाउंट भी खाली हो जाएंगे आज सूरत तौबा पढ़ने के बाद भी आपको अपने बच्चियों के रिश्ते वैसे ढूंढ रहे हैं तो बेशक ढूंढिए आप ये यहाँ पर आयतें मौजूद हैं फिर अपना अंजाम उनके साथ देख लीजिएगा आज भी आपने शरीयत का मजाक उड़ाना है आज भी आपने शरीयत को प्रवोक नहीं करना आपने निकाह को प्रमोट नहीं करना ना करें सत बिस्मिल्लाह किसी का क्या जाता तो उसी का है ना अल्लाह कह रहा है जो क्या करता है जो मुझे भूलता है मैं उसे ही भूलता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा हुमुल फासिकून फासिक वही है मुफलिस वही है गरीब फ़कीर वही है जो किसी का दिल दुखा के आ गया जो किसी को थप्पड़ मार के आ गया जिसने किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ इतने मारे कि उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया फिर माफिया नहीं मिलती फिर अब्दुल्ला बिन उबई की तरह कब्रों के ऊपर खड़े होके क्या किया जाए अस्तगफार पढ़ी जाए या कफन दे दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में अम्मा आयशा के किरदार पे बोला था ना नो माफ़ी का अब चांस नहीं है वादल्लाहुल मुनाफिकीन अल्लाह कह रहा है मैं खुद वादा करता हूँ अल्लाह के वादे में कोई शक है मैं रब वादा करता हूँ अल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाती मैं ऐसे लोगों से मैं वादा करता हूँ कि मैं पहुँचा के रहूँगा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा वो चाहे जितने हज नमाजें रोज़े ज़कातें कर लें किसी यतीम के ऊपर रोब डाल लिया किसी मुलाजिम के ऊपर अपना हक जताते हुए इस्तेमाल कर लिया ज़बान चला ली किसी के करैक्टर एसिनेशन करते हुए आपको किसी का ख्याल आ गया हम किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते हमें स्पॉट लाइट्स डालने की आदत है दूसरों के करैक्टर पर स्पॉट लाइट डालने का शौक़ चढ़ गया आपको हम माजरत ख़्वाह हैं ये नंबर किसी और लाइन पे मसरूफ़ है फिर माजरतें नहीं चलेंगी
अलमुनाफिकीन वलमुनाफिकात, मैं रब वादा करता हूँ कि मैं वल कुफ़ारा, और जिन्होंने, अल्लाह ने पहले कहा था, आपको कुफ़र की डेफिनेशन मैंने समझाई है, जिसने मुनाफिकत की उसने ईमान लाने के बाद क्या किया, कुफ़र किया, उस काफिर के लिए फिर क्या है, नारा जहन्नमा। फतवे लगाने हैं तो इन पे लगाइए, दिल तोड़ने वालों पे लगाइए कुफ़र के। अल्लाह खुद कह रहा है, मैं फतवे लगाता हूँ। नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, जहन्नम की आग भी ऐसी जिसमें से निकलने का चांस नहीं। अल्लाह ने खालिदीन का वर्ड यूज़ किया है। खालिद किसे कहते हैं, हमेशा। मैंने पहले कहा था अंजाम हाविया है। चलें, ऊपर वाला तो उम्मती निकल आएगा ना, हमें बड़ी उम्मीदें हैं, हमारी सिफारिश हो जाएगी, हमारी शफात हो जाएगी। हम क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया में हैं तो हम हमारा जो दिल चाहे करें, हम जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह कह रहा है मैं कुछ और चीज़ का वादा कर रहा हूँ, उससे निकलने के कोई चांसेस भी नहीं होंगे। हे हस्बहुम, हस्बहुम का मतलब है दे बेटर डिज़र्व इट। यकीन करें मेरा लहजा साथ नहीं दे रहा आज की आयत को, मेरा समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जो अल्लाह का लहजा है इधर, हे हस्बहुम दे बेटर डिज़र्व इट, दे जस्ट डिज़र्व इट, उनके लिए काफ़ी यही अंजाम है। वलानहुमुल्लाह, अजाब थोड़ा था, जहन्नम थोड़ी थी, ऊपर से लानत। लानत सिर्फ उस शैतान मरदूद को मिली थी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करे। अल्लाह कह रहा है मैंने सिर्फ अजाब नहीं दूंगा, जहन्नम में नहीं डालूंगा, मेरी लानत है उन पर। वलानहुमुल्लाह, तमगे के तौर पे लानत मिलेगी। माथे पे एक ताज भी तो होता है ना, माथे के जेवर मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं पठानियों वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कह रहा है फिर उनके माथे पर एक सिंबल भी बनाऊंगा, लानत का सिंबल बनाऊंगा। वलहुम अज़ाबुम मुकीम, पहले खालिदीना कहा, अब मुकीम कहा। अल्लाह में इनमें शामिल न करना। उनके लिए ऐसा अजाब होगा जहाँ हमेशा के लिए मुकीम हो जाएंगे। कायम का मतलब समझते हैं ना, अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, कायम हो जाएंगे। कोई ये नहीं हो सकता कि फिर कोई चेंज हो जाए। घरों के बाहर लिखते हैं ना होम स्वीट होम, क्योंकि हमें पता होता है हम यहाँ रहेंगे, मुकीम है। कभी कहते हैं हम मकान में रहते हैं, हम कहते हैं हम घर में रहते हैं। कभी किसी ने कहा है? अब तो लोग कह भी देते हैं वैसे, मेरी कोठी नंबर है, मेरा बंगला नंबर है, ये नहीं कहते मेरे घर का नंबर है। फिजिकल एंटिटीज़ पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। दिमाग के ऊपर लगी हुई है, खोपड़ी में लगी हुई दो आँखों से बड़ा काम लेते हैं। दिल की आँखें पता नहीं कब खोलेंगे। उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। कल्लज़ीना, कैसा अजाब है, मिसाल भी दूंगा आगे। उन लोगों की तरह मिन कबलिकुम, उनसे पहले जो दुनिया पे हो गुजरे। मैं आज अपना जो दिन का लेसन पढ़ा रही थी, वहाँ टेक्नोलॉजी का जिक्र आ गया। अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाने की बात कर दी। जो पैरामिड दरियाफ्त हुए ना, हम तो समझ रहे थे कि फ़िरौन मिस्र ने बनाए हैं, वो कौन से हैं, इजिप्ट में हैं, ग़ज़ा में हैं, वो इस तरह से होता है। हम समझ रहे थे कि वो टेक्नोलॉजी उनकी थी। कहते हैं कि जो उधर से उनकी लाइब्रेरी से ग़ज़ा की जो अभी रिसेंट रिसर्च है, स्क्रिप्चर मिले हैं, वो हज़रत नूह से भी पहले के हैं। नूह से भी पहले के हैं। पैगंबरों को पता था तूफ़ान नूह आना है, पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। वो उन लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पानी की बूंद भी अंदर ना आए, प्रिजर्व रहे। जो एक नेशन टेक्नोलॉजी की पीक पर गई है, दूसरे के लिए अपना निशान छोड़ जाए। हम कोई भी तस्वीर बनाते हैं मोबाइल में, पहले क्या करते हैं, सेव का बटन दबाते हैं कि नहीं? वो पैगंबरों ने सेव किया है, प्रिजर्व किया है। तूफ़ान नूह से भी पहले के बने हुए हैं। अल्लाह कह रहा है तुमसे पहले लोगों की बात करके बता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आज का मुनाफिक, जो मदीने का मुनाफिक, मुल्तान का मुनाफिक, जो कुछ करता फिर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। उनसे पहले बड़ी टेक्नोलॉजी वालों ने भी यही बातें की हैं। मिन कबलिकुम कानू अशद्दा मिनकुम, वो बहुत शदीद थे तुमसे, बहुत आगे थे तुमसे। कुव्वत किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी, आपकी सलाहियत, आपकी एनर्जी।
इंसान कमज़ोर हो जाए तो कहाँ से कुव्वत लेता है फिर? मल्टी विटामिन खाते हैं कि नहीं खाते? कुव्वत बहाल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह कह रहा है वो तो कुव्वत में कहीं ज़्यादा थे। तुम कहाँ बैठे हो? तुम समझते हो तुम स्पेसशिप भेज सकते हो? उन्होंने ऐसे पिरामिड्स बना दिए हैं कि आसमान तक पानी चला जाए फिर भी अंदर कतरा भी ना पहुँचे। उन टेक्नोलॉजियों वालों को मैंने मिटा दिया है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। समझ नहीं आ रही? मिनकुम कुव्वतम व अक्सरा अमवाला, माल भी बहुत थे। क्या इंडिया पाकिस्तान अपना बजट लगाते होंगे इस पर, डिफेंस पर? हमारे यहाँ भी तो फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, डिफेंस पे लगा देते हैं। सिविल गवर्नमेंट्स में जो होते हैं ना मुलाजिम, उनको बड़ी शिकायत रहती है। अच्छा, अमवालम व औलादा, औलादें भी बड़ी दी थी। अब तो हमारे यहाँ तो 2-3 बच्चों पर आ गए ना हम लोग। हमारी फर्टिलिटी के मतलब डॉक्टरों ने प्री प्लान्ड हमारी ख़त्म कर दी हैं मुस्लिम नेशंस की। पहले सुनते हैं हमारे नाना दादा के दौर में 4 भाई थे, 5 भाई थे, 6 भाई थे, 7 भाई थे, 8 भाई थे, 8 बहनें थीं। अल्लाह कह रहा है हर दौर के लोगों से पिछले दौर के लोग बहुत तरक्की याफ्ता थे, बहुत माल वाले थे, बहुत औलाद वाले थे। अगर अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो उनके यहाँ औलाद की भी कमी नहीं थी। फस्तमतऊ बिखलाकिहिम, फिर उन्होंने फ़ायदे उठा लिए। खलक का कहते हैं हिस्से के, अपने हिस्से की एंजॉयमेंट पूरी कर ली। उनका हिस्सा ही इतना था, किसी का मजाक उड़ाया, किसी का दिल तोड़ा और इसको मामूली समझा।